Good morning. Today we will continue the chapter The Force and Pressure. And today's topic is types of force. There are mainly two types of force, and that is the contact force and non-contact forces. Contact force means ऐसा फोर्स जो किसी के कांटेक्ट में आने पर लगाया जाता हो, और नॉन कांटेक्ट फोर्स जो बिना कांटेक्ट में आए एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई किया जाता है. A contact force occurs when the object exerting the force touches the object or which is it act, or a non-contact force occurs when the objects do not touch each other. Okay, so the first is muscular force. Muscular, which is related to the muscles of our body. So the force applied by the muscles of our body is termed as the muscular force. वो force जो हमारे body के muscles के द्वारा लगाया जाता है वो muscular force कहलाता है. Okay, for example, uh, pulling a bicycle, and on animals also make use to muscular force to carry out physical activities. For example, bullocks, horses and donkeys and camels are used to perform the various uh, tasks for us, and it is a type of contact force. Second is mechanical force. The force produced or exerted by a machine. ऐसा force जो कि मशीन से लगाया जाता है मैकेनिकल फोर्स कहलाता है. To produce a force by the machine, we must supply if with some kinds of energy. For example, petrol is used to produce energy, and it is the force which is used to run a motor car engine. uh, Energy of moving air is also used to produce the force. uh, and the third is फ्रिक्शनल फोर्स. ये भी एक तरह का कांटेक्ट फोर्स होता है, which comes into play when a body slides or tend to slides to another body. This force comes into play when there is relative motion between the two bodies. ये फोर्स तब काम करता है जब दो मोशन वाले ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर काम करते हैं. जिस तरीके से एक बॉल को जब किसी फ्लोर पर मूव कराया जाता है या उसको लुढ़काया जाता है, इट कम्स टू रेस्ट, और तो ये कुछ समय के पश्चात ये कुछ दूरी तक जा कर के ये रुक जाता है बिना कोई फोर्स लगाए. मीन्स अ फोर्स डज नॉट सीम टू एक्ट. हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ दूरी तक बॉल चलने के पश्चात रुक जाती है. इसका तात्पर्य है कि कोई एक ऐसा फोर्स है जो इस बॉल को आगे बढ़ने से रोक रहा है, और ये जो फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के, तो इस तरह के फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से जाना जाता है. Frictional force are also two type, and the first is static, three types, sorry, static friction, sliding frictions and rolling friction. So the first is static friction. इस तरह के जो फ्रिक्शन है वो दो बॉडी के ऊपर आपस में लगाए जाते हैं जिसमें दोनों रेस्ट में होती है और ये एक दूसरे के ऊपर काम करती है. सेकेंड, sliding friction or kinetic friction. It is the opposing force that comes to play when one body actually slides over the surface of another. एक जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरी बॉडी के ऊपर ये फिसलता है, जिस तरीके से किसी लकड़ी के टुकड़े को जब किसी
चलती हुई चीज़ के ऊपर या किसी टेबल के ऊपर से लुढ़काया जाता है। एंड द थर्ड इज rolling friction. This opposing force coming into play when one body actually rolls over the surface of another body. इसमें एक बॉडी रोल करती है किसी दूसरे सरफेस पर, जैसे एग्जाम्पल है सोलर रोलर स्केट्स, व्हील एटसेट्रा. डिसएडवांटेज, ये एक तरह का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसलिए इसमें एनर्जी लॉस्ट होती है. It is responsible for wear and tear of the many parts of machine. It also wears out material like screw, ball bearing or the soles of the shoe. ये कई तरह के स्क्रू लगाए जाते हैं, बॉल बेयरिंग और इस तरह की चीज़ें जो कि वेस्ट करती हैं एनर्जी को. इसमें लॉट ऑफ फ्रिक्शन जो होते हैं लगता है जिससे काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है, और ये एनर्जी जो पावर भी मशीन की कम करता है. The sandpaper will wear down the erases much faster because it is rougher. जब फ्रिक्शन जो होता है वो जैसे किसी सोल को, जूते के सोल वो ज़मीन पर फिसलने से बचाते हैं, क्योंकि वो रफ़ हो जाते हैं, उनकी सोल की डिज़ाइन उनको फ्रिक्शन ज़्यादा कर देती है, अधिक कर देती है, जिसके कारण वो गिरने से बचाते हैं. इसी तरीके से जब हम किसी साइकिल को चलाते हैं तो उसके टायर्स में काफ़ी ग्रूव्स होते हैं जो कि फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं और साइकिल को स्लिप करने से बचाते हैं. Why is the reduced fraction? Ways to reduce friction. अब फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है. दो सरफेस को चिकना बनाते हैं और जिसके कारण फ्रिक्शन कम हो जाता है और मशीन वगैरह की एनर्जी लॉस्ट होने से बच जाती है. बाय पॉलिशिंग द सरफेस, किसी सरफेस पर पॉलिश करके उसकी जो इस सरफेस को स्मूथ बना दिया जाता है, चिकना बना दिया जाता है, जिससे भी फ्रिक्शन कम हो जाता है. बाय यूजिंग व्हील एंड बॉल बेयरिंग और व्हील्स जो होती है वो भी फ्रिक्शन को कम करती हैं, जिससे कि एनर्जी का वेस्ट हो नहीं होता. आई स्ट्रीमलाइन द शेप ऑफ द बॉडी. एरोप्लेन की बॉडी जो है वो स्ट्रीम लाइक होती है, जो कि फ्रिक्शन को कम करती है और जिसके कारण उसकी गति में, स्पीड में तेज़ी आती है. स्ट्रीमलाइन बॉडी की मदद से बहुत नाव, जहाज़, इस तरह की बॉडी को ऐसे स्ट्रीमलाइन शेप बनाया था, फिश लाइक, जिससे कि उसके फ्रिक्शन कम हो, और फ्रिक्शन कम होने के कारण उसमें एनर्जी का वेस्ट कम होता है और उसमें जो बहने की जो तेज़ आगे गति है वो तेज़ होती है. वेज टू इंक्रीज फ्रैक्शन. अब इन फ्रैक्शन को बढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं? बाय इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सरफेस को रफ करके फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सकता है. जिस तरीके से जूते के सोल या टायर में डिज़ाइन रफ कर दिया जाता है कई तरह की, उसमें ग्रूव्स और बना करके, ताकि वो फ्रिक्शन बढ़ जाए और वो स्लिप करने से बचा रहे. बाय ड्राइंग द सरफेस को सूखा करके भी फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सकता है. ड्राइंग द सरफेस इज अनदर वे टू इंक्रीज द फ्रिक्शन. सैंड एंड द ग्रेवल्स आर थ्रोन ऑन द स्लीपरी ग्राउंड. जो फिसलन वाली जगह होती है, उस जगह पर सैंड और मार्बल डाल करके, गिट्टी डाल करके उस जगह को रफ बना दिया जाता है, ताकि वहाँ पर स्लिप होने से बचे और फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है, अधिक हो जाता है. द यूज़ ऑफ द ब्रेक पैड्स इज अनदर मैथड ऑफ इंक्रीज द फ्रिक्शन. जो बाइक के
जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो भी फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, ये अभी तक जो फ्रिक्शन था ये कांटेक्ट फोर्स था, जो दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, जबकि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। It is using force to leave the object, and this type of force is known as magnetic force or magnetism. It is exerted by the magnet on certain metals such as iron. This is because magnetic force acts as from a distance, so it is also in the category of non-contact force. A magnet exerts a force on another magnet without being in contact with it, so the force exerted by the magnet is an example of non-contact force.